We introduce Asha Mumbai, a center for promoting education and welfare of underprivileged children from the street and slums. आशा ट्रस्ट मुंबई संस्था। ये दुनिया की आशा फॉर एजुकेशन संस्था का इंडिया का चैप्टर है। आशा की शुरुआत इंडिया से उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए हुए 3 IIT के छात्रों द्वारा की गई थी। उनका एक ही मकसद था, अपने देश के वंचित लोगों की शिक्षा में मदद। How Asha Mumbai was born. Asha as an organization, Asha for Education is the parent organization, and that was born in US, and with the help of, founder members were nobody else but the Indian students who went there to study, pursue higher education from IIT Kanpur, and the main person, founder was Dr. Sandeep Pandey and Deepak Gupta. Now, Deepak Gupta is still a professor in Kanpur IIT, and Sandeep Pandey has finished his work and he's now in various universities. He's teaching, but at the same time he's working for education. क्योंकि वे चाहते थे कि समाज में जो भी समस्याएं हैं, उनका हल समाज बदलने से ही होगा। शिक्षा से ही समाज बदलेगा। देश में बड़े पैमाने पर निरक्षरता है और यही कारण है कि भारत के समाज में ढेर सारी कुरीतियां, अज्ञान है जो प्रगति में अवरोध पैदा करते हैं। जब राजा और शेष नाम के 2 बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे कचरा बटोरने जाते थे, उन्हें कई बार चोट लग जाती थी, सुई चुभ जाती थी और वो परेशान रहते थे क्योंकि माँ दिन भर कचरा बटोरने में समय पर बच्चों को खाना भी नहीं दे पाती थी। बच्चे भूखे रह जाते थे। ऐसे में डॉक्टर स्मिता के क्लिनिक के सामने एक राजू नामक मैकेनिक था जो इन बच्चों को तकलीफों से निकालने के खातिर अपने गराज में लाता था। There were 2 boys who were mechanics. There was a mechanic and the boys were assisting him with screwdriver, and their mother used to go for rack picking. So this man who was a mechanic, he picked them up and kept in his own garage. That garage was just in front of my clinic. So I used to observe these boys sitting like this, looking in the dark, like what is going to happen their life. But they would help the mechanic. इस गराज में दोनों बच्चे छोटी मोटी मदद करते थे। इन्हें देखकर स्मिता को लगा कि ये बच्चे पढ़ लेंगे तो एक अच्छी बात होगी। उन्होंने राजू से कहा कि इन बच्चों को स्कूल में डालें। राजू ने तुरंत कहा, क्यों नहीं मैडम, मैं तो इन्हें तकलीफों से निकालने के लिए ही लाया था। आप इन्हें जरूर स्कूल में डाल सकती हैं। Then I asked one day why that fellow also, why you are getting this child labor done? He said, Madam, just see, this is not a child labor. Why am I helping? These children go after their mother and they may get pricked with the needles and all the kachra, dirty things, they will be roaming around. So I just called them, at least you sit here and help me out. He was paying them 300 rupees for that. So I said, okay, that's very good, but can I put them to the school? They said, oh yeah, you can. So I took them to the school. डॉक्टर स्मिता ने इन्हें क्लिनिक में ही पढ़ाना शुरू किया और देखा कि राजा और शेष दोनों पढ़ने में दिलचस्पी लेने लगे। उन्हें स्कूल में डाला गया। आज पढ़ लिख कर राजा और शेष अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। And the teachers admitted, they were big ones, beyond their age, but they were put into the school, 2nd standard, 3rd standard. They did not have birth certificate to admit. I gave my letter on my letterhead that this woman gave birth to this child in home, and like that it worked, and they admitted. The children studied there, they grew up, and they are now having their own work. डॉक्टर स्मिता के इस छोटे से प्रयास का परिवर्तन एक सेंटर में तब्दील हो गया। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए वॉलंटियर भी आने लगे। And in the process from 2 to 4, 4 to 8, like that they went on multiplying up to 15, 20. धीरे धीरे छोटे मोटे डोनेशन भी आने लगे। टीचर को मान धन दिया जाने लगा। फिर जरूरतें बढ़ी और आशा ट्रस्ट के तहत आशा एजुकेशन से फंड्स के लिए अर्जी दी गई।
आशा का विकास होने लगा। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 2 से 4, 4 से 6 बच्चों की तादाद बढ़ती गई। इससे डॉक्टर स्मिता का हौसला और भी बुलंद हो गया। तो घर रूम में ऐसा 10-12 बच्चे आई यूज टू टीच, बट इट बिकेम chaos. I was not used to teaching per se, like teacher. So somehow I managed and I said, नहीं तुम लोग क्लिनिक में ही आओ. Again those lot also started coming to the clinic. Patients used to ask, ये करते क्या हो आप? Why these students are roaming around here and there? I said, I'm just teaching them. Oh, that's a good thing. Can we also help? I said, of course, most welcome. So they started joining in. And this was the story then. When they became so much, then we took a room somewhere for a very minimal. We did not have money as much, but we just chilled out. जब उन्होंने आशा फॉर एजुकेशन के फाउंडर डॉक्टर संदीप पांडे से अपने काम का जिक्र किया, तो उन्होंने फौरन स्मिता को आशा से जुड़ने के लिए कहा। Then I asked Sandeep Pandey, who was friend of my husband. I said, भैया ये हम ऐसा कर रहे हैं, आशा से क्या हो सकता है, जुड़ाओ। बोले, of course, if you are doing a genuine work, you can always join आशा। यहाँ पर केवल स्कूली पढ़ाई ही नहीं बल्कि हर तरह की शिक्षा मुहैया कराई जाती है। मैम ने अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दी और बहुत सब कुछ हम लोगों ने आशा ने किया है, और बहुत सारे फंक्शंस, वेकेशंस, पिकनिक्स और स्टडी के साथ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हर डेली होते रहते, जैसे कि आर्ट, पेंटिंग, क्विलिंग, एम्ब्रॉयडरी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस वगैरह। स्पोर्ट्स में भी आशा के बच्चे पीछे नहीं हैं। इसके अलावा बेसिक हेल्थ के खातिर शारीरिक व्यायाम और सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है। आई एम अ नेशनल लेवल फाइटर, मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग। आई हैव प्लेड बॉक्सिंग इन स्टेट लेवल विथ माई स्कूल परफॉर्मेंस। बहुत आशा ने मेरे को सपोर्ट्स किया है, मेरे को दिल्ली भेजा, लखनऊ भेजा है। आई एम एट गूगल ऑल्सो फ्रॉम आशा सेंटर। यहाँ लड़कियों को खास तौर पे आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जाती है। बदलते वक्त के लिए आशा हमेशा कारगर साबित हुई है। जैसे कि कोविड-19 की महामारी की वजह से कई घरों में कमाते लोग बेरोजगार हो गए थे, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। आशा ट्रस्ट मुंबई ने लॉकडाउन के फौरन बाद 2000 परिवारों को राशन देने का इंतजाम किया। कई जिंदगियां महीनों अपना पेट भर सकी थी और अब भी स्थिति सुधरी नहीं है। आशा ने कम्युनिटी की गृहिणियों तथा लड़कियों को टेलरिंग, ब्यूटिशियन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे हुनर सीखने का भी आयोजन किया है। ये बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है और ये लोग खुद के पैर पे खड़े होते हैं तो और इनसे एक पहचान मिलती है। बाहर हमको 30-25 हज़ार देना पड़ता है ब्यूटिशियन के लिए, बट आशा ने हमको ये प्रोवाइड किया है कि हम ब्यूटिशियन सीखे। ब्यूटिशियन ये नहीं है कि हम बस मेकअप ही करें, वो हमारी हाइजीन के लिए। इस वक्त करीब 40 लड़कियां ये सारे कौशल सीख रही हैं। खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि मानसी जी, जो एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, जो स्त्रियों के प्रश्नों पर लिखती हैं, एक जानी मानी मलयालम की साहित्यकार हैं। When I came to Asha, actually I liked the whole idea of educating the children because, as she said previously, that the quality of education in our normal schools, government schools or BMC schools was so poor. So how can I help them? That was my question personally, and this was another person who is asking the same question. So we joined hands together. वे आशा के बच्चों को हर तरह का मार्गदर्शन कराती रही हैं। We could communicate very well, so I just wanted to be a part of Asha, and it was a very small beginning, 3-4 people, and nobody has any money like that. The only thing we had is the dedication and the desire to teach children. मानसी आशा के साथ निरंतर खड़ी हैं। When I came to Asha, when I found the children, the main thing I felt was they do not have the opportunity. Not because they are anyways inferior to any other child of mine or hers, anybody, but they don't, what they lack is opportunity. मानसी मैम करते जा रही है, मैं अटेंड करा रही है, मुझे सीखने मिल रहा है और मैं गरीब बच्चों को सोचा सिखाने। आशा की ये जो प्रगति हुई है, इसके पीछे एक टीम ऑफ वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा सहभाग है। मेरी ऐसी धारणा है कि बच्चों को हम केवल मार्क्स के लिए पढ़ाई जो करवाते हैं
वो उतना फ़ायदा देता नहीं है। हमारे स्कूल्स में जो एजुकेशन होता है वो जनरली ऐसा होता है कि मार्क्स के लिए आप काम करो, पेरेंट्स भी केवल मार्क्स के ऊपर फोकस रहता है, बट बच्चों का शायद लगाव या चाव कुछ और होता है। सो वी लिटरली केटर टू ईच एंड एवरी चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग्स, हम कोशिश करते हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर हैं और अपना जो भी बकाया समय है उसमें वे आशा की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। आगे की जनरेशन भी उतनी ही ताज़ा वो होगी। मराठी में है ये स्पेशली, पाखरे मुक्त असतात तेव्हाच ती किलबिलाट करतात। जब हम यहाँ प्रोफेशनल लोग उनके साथ जब काम करते हैं, बट साइमल्टेनियसली बच्चों के साथ काम करते करते हम भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, पढ़ाई तो करते ही है, बट उसके साथ साथ बच्चों के अंदर, उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आशा ट्रस्ट भारत के अलग अलग हिस्सों में वहाँ के लोगों की जरूरतों को देखते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जैसे कि यूपी में 2 प्रोजेक्ट्स और महाराष्ट्र के ठाणे और पवई के पास एक आदिवासी गांव साई बंगोड़ा में एक प्रोजेक्ट। आशा का मकसद सिर्फ शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी होता है। जैसे हम अगर एक साथ बैठे हैं तो आई नो कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में है, कौन सा बच्चा म्यूजिक में है, कौन सा बच्चा ड्राइंग में है, ये मुझे पता है। और उनको हम केवल एक ही एम है कि सबको लर्निंग अलग अलग एक्सपीरियंसेस देंगे, वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे एट दिस लेवल, तो फिर आगे जाकर वो उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं। एंड सेकेंडली देयर इज अ कॉन्फिडेंस। आशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वे जरूरतमंद लोगों को देते हैं शिक्षा, ट्रेनिंग और प्रोत्साहन। कि मुझे कुछ भी नहीं आता था तभी, ना रीडिंग ना कुछ बोलना तक नहीं आता था ढंग से, तो फिर आशा से मैंने ऐसे मतलब सीखते गई। टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प किए। आगे चलते चलते फिर मैं मैम के क्लिनिक गई, मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ताकि वे अपनी काबिलियत को पहचान कर अपने लिए सम्मान से जीने की राह को आसान बना सकें। मेरे को मैम से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं भी मैम की तरह बच्चों की हेल्प करूंगी। पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर तो नहीं बन पाई, पर आई एम MSc इन केमिस्ट्री प्लस B.Ed। आज आशा को कई महत्वपूर्ण लोगों की निस्वार्थ सेवाएं और सहयोग मिल रहा है। मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली जिससे कि ना मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दूसरों को भी शेयर करूँ, दूसरे भी करें। जैसे कि प्रोफेसर्स, टीचर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, थिएटर कलाकार इत्यादि। आशा NGO में बच्चों को कंप्यूटर सिखाता हूँ और वहीं पर मैं सीखा भी हूँ और पढ़ा भी हूँ। तो जब मैं 6th क्लास में था तब मैं आशा NGO में आया। आशा NGO एक ऐसा NGO है जहाँ पर बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती है और यहाँ पर बच्चे आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, उसके अलावा अपने एजुकेशंस की जो पढ़ाई रहती है वो पूरी करते हैं। ये लोग अपने क्षेत्र के ज्ञान और अपनी जिंदगी के अनुभवों के साथ यहाँ के बच्चों को सिखाते हैं और एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद करते हैं। मुझे बहुत कभी कभी रोना आता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर थ्रोन आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ओनली बिकॉज दे डोंट हैव द डिवाइस। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट देम कि उनके पास अगर फ़ोन नहीं है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करेंगे। मतलब वी हैव पीपल हु से दैट ऑनलाइन एजुकेशन, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई उन्होंने की। अरे लेकिन ऑनलाइन जब पढ़ाई करी तो हुआ कि कितनी पढ़ाई हुई वो कौन देखने वाला है। आशा ने कई लड़कियों और गृहिणियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है, ताकि उसकी मदद से वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और कुछ पैसे कमाकर एक सम्मान भरी जिंदगी जी सकें। In Asha, actually, this year we have started the employability projects where people will be skilled. I mean, the students, young children and young girls or boys are given the training into some skills so that they can either become self-reliant or they can work somewhere and they can get a good job. इससे समाज बदलेगा तो देश भी बदलेगा। आशा के मिड डे मील प्रोग्राम में डोनर बच्चों की पसंद को देखते हुए उन्हें उनका वो मनपसंद खाना खिलाया जाता है जो उन्होंने कई दिनों से नहीं खाया होता है, या उसे खाने का वे सपना देखते हैं।
तो उसमें हम उनको पोषक तत्व ही देते हैं। जैसे कि पाव भाजी भी बनाते हैं कभी मन चेंज करने के लिए, मगर मोरिंगा पराठा है, फिर भगर की खीर है, तो ऐसे संतुलित आहार हम उनको देना चाहते हैं ताकि उनको एटलीस्ट उसके बारे में पता चले, कैलोरीज पता चले उसमें कितनी है, प्रोटीन्स पता चले कितनी है, फिर पर पर्सन उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, ये सब हम उनको सिखाते हैं यहाँ पर। हम डोनर को यहाँ पर आकर इस अनुभव को महसूस करने का निवेदन करते हैं। यहाँ आशा में एक दिलचस्प बात ये है कि आज हमारी संस्था का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम एक ऐसा युवक संभाल रहा है जो कई साल पहले इस संस्था में आया था। यहाँ से पढ़ लिख कर आज वह यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को संभालने का जिम्मा खुद ले लिया है। मैम ने हमको धीरे धीरे सिखाया कि ट्यूशन में, क्लिनिक में बुलाते थे, हम लोग खुद पढ़ते थे खुद से आगे। तो अभी हमारे पास इतना बड़ा भी नहीं था आशा, एकदम छोटा भी हमारा प्लेस था, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। तो मैं हमको धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग ट्यूशन होता है, मतलब एजुकेशन, पिकनिक और एक्सपेरिमेंट, और बच्चों को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड होती है और हमका हेल्प करते हैं। आज आशा का आप जो एक व्यापक और मजबूत आधार देख रहे हैं, उसकी बुनियाद में कई सारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और प्रोफेसर्स का अथक प्रयास शामिल है। अपने ज्ञान और कुशलता की रोशनी को दूर दूर तक फैलाने के लिए आशा ऐसे लोगों को सलाम करती है।